Hello everyone, welcome to one another live session of Marathon Materia Medica. And first of all, to start with today, many congratulations to all my friends, those who have got good ranking in AIAPGET medical entrance. And don't worry, those who have not scored good, don't worry, बस admission ले लेना, MD कर लेना, कोई बात नहीं है. अच्छा रैंक बुरा रैंक MD करना जरूरी है. Okay, so just starting off with that, today's guest is our very good friend, Dr. Pravin Pente. Dr. Pravin Pente practices in many locations. One is Amravati, one is in Thane, and he is a very good homeopathy who has a very good grip over pathological cases. I met him personally in our Khandala clinic, in our Khandala camp workshop, and he showed me few cases and I was taken aback that, but so humble. He's just, I guess, one time we did this work, webinar series of advanced pathological cases where he had shown his cases. Otherwise, he never discusses his cases. But I'm very fortunate that he has agreed to be with us today. I would request Dr. Pravin Pente bhai to please, Pravin bhai please जल्दी आ जाओ. बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे आज सीखना चाहते हैं. And we are doing two alphabets today, D and E. So both the alphabets we will do, and I wanted to tell you guys something. Yes, there is a small surprise. Those who follow Dr. Farooq Master, those who know what Dr. Farooq Master does, he does this Khandala workshop every year. He used to do previously twice a year, then we cut it down to once a year because of his busy schedule. But it is going to happen soon. Yes, in January 2024 we are doing this Khandala workshop. So keep yourself tuned in. As soon as the announcements come up, please register yourself, because that workshop is not just classroom teaching, but off the class teaching is very important, where we meet our friends like Ranjanda, the Pravin Bhai, and a lot of other doctors across Maharashtra from different states come, and we learn in the classroom from Dr. Farooq Master sir. And off the classroom, it's a big school where we sit maybe in the night, 2 o'clock, 3 o'clock, and we discuss cases and we discuss so many things. And so if you guys are interested, stay yourself tuned in. Pravin bhai, welcome. Please एक request भेज दीजिए ताकि हम लोग शुरू कर सकें आज का सेशन. Pravin bhai, you'll have to send a request. It might be coming on your screen. Soon Dr. Pravin Pente will be with us, and we will be running through D and E. Also, you guys have given a wonderful response to our last week's video. Last week we have crossed 5k views just in 7 days. So all thanks to Dr. Sheetal for that. She came and with her bubbly face she taught us. Hello Pravin bhai. Hello Dr. Pravin Hi. ji. I hope I'm audible to you. Yes, you are absolutely audible. सब लोग सिर्फ एक बार thumbs up कर दो. Yes, Chintan is also online with us. Please just do thumbs up if everybody thinks that we are audible. We'll just start rushing with it. कैसे हो प्रवीण भाई? I'm good. आप कैसे हो? All good. Thank you so much for coming live on this live session. Don't say thank you. Yes, so thumbs up आना शुरू हो गया है. तो प्रवीण भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आज इस पे बात करेंगे, डी और ई पे. तो ओपनिंग बैट्समैन आप हैं, आपको शुरू करना है. डैफ्ने इंडिका. अच्छा चलो फाइन. ओपनिंग मैं हूँ तो we'll start. First of all, just wanted to know that I heard about that you have started lectures on Boger Synoptic Keys and all that. So if everybody knows about the Boger, just wanted to add into that. Why Boger?
आपने स्टार्ट किया, नो डाउट, बस जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, वांटेड टू सिंप्लीफाई दैट व्हाई बोगर, बोगर जो है ना वो बहुत क्लिनिकल थे एंड इज अ वेरी फास्ट क्लिनिशियन. तो उन्होंने सिंपली क्या किया कि ही हैज पिक्चराइज्ड द थिंग्स. नाउ वी ऑलवेज इफ यू सी द एक्यूट केसेस ना, तो उन्होंने सिंपल किया, ही हैव गिवन सम इंपॉर्टेंस इन अ केस जो एग्जैक्टली मैच हो. He has written that pathogenetic symptoms to the clinical symptoms. तो ताकि एग्जैक्ट रेमेडी मिले और वो काम करे. So you have described very nicely that first of all he give more importance to the modality, जो damn sure है. I'm really wanted to know that कि ये अगर हम लोग modality है तो definitely we have a good remedy. Second, he give importance to the mind, sensation, and then he came to the most important clinical points and the observation. So only on these points Boger have described all the key points, all the key symptoms in his book. So आज हम लोग वही देखने वाले. From D to C we have 18 remedies. But मैं वही डिस्कस करूंगा रेमेडीज जो मुझे पता है या मैं जो मेरे क्लिनिक में यूज करता हूँ डेफिनेटली. So and I wanted to do that. I'm not a very good reader, so I'm a clinician, so I wanted to discuss only on clinical point today. तो कुछ पॉइंट रेमेडीज है, लाइक आपने बोला कि डेफिने इंडिका, देन डिक्टामनस अल्बा मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अच्छा, तो आई एम नॉट एबल टू टॉक ऑन दिस पॉइंट, बट डेफिनेटली जो भी आज डिस्कशन होगा विल बी मोर इंटरेस्टिंग और बड़ा मजा आएगा. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्रग दैट इज डिजिटालिस परप्यूला, जो हम लोग हमारे क्लिनिक में यूज करते हैं. बट ये भी जरूरी होना चाहिए कि हमको ये रेमेडी कब यूज करना है और बोगर साहब ने इसके ऊपर कहाँ का इंपॉर्टेंस दिया है ना. हम जब भी रेमेडी पढ़ते हैं, लाइक डिजिटालिस पढ़ते हैं हम बोगर साहब के यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दिया है मोडेलिटीज. तो मोडेलिटीज में उन्होंने बहुत टिपिकल दिया है कि ये मोडेलिटी में एग्रेशन बाय मोशन है, एग्रेशन बाय एक्सर्शन है. उन्होंने दिया है एग्रेशन बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एग्रेशन बाय गेटिंग अप. तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि मोडेलिटीज आई कहाँ से, राइट. So why we need to give more importance to modality? Why Boger has given more importance to modality? कि exertion के बाद क्यों तकलीफ हो रहा है, लाइन के बाद उसको लाइन के बाद रेस्ट कर उसको आराम क्यों. Why digital patient having some fluttering of heart or heart beats से पपल हो जाते हैं, changing of position. वो उठ के बैठता तो उसको तकलीफ होता है. Why is this so? If he moves around भी तकलीफ हो रहा है. Why is this happening in digitalis? Most probably we know that ये रेमेडी जो है ना कि हार्ट रेमेडी है, तो हम सब लोग बोलते हैं, राइट. है ना. बट वांटेड टू ऐड यू हियर मोर इम्पोर्टेंट बट ये रेमेडी ना सबसे बेस्ट रेमेडी है वोमिटिंग के लिए भी आफ्टर द कैम्फोरा, राइट. सो अब ये हो क्यों रहा है, व्हाई दिस रेमेडी हैविंग अ प्रॉब्लम विद स्टमक, वोमिटिंग, नॉसिया, डेथली नॉसिया बोलते हैं हम लोग, या हार्ट पे ही क्यों गड़बड़ है ना. तो I'm telling you one of the most clinical important point here. Boger has given the importance of first thing is vagus. तो vagus का importance है रेमेडी भाई आया कहाँ से, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. First of all, digitalis is a remedy prepared with digitalin and digitoxin. ये दोनों का मिक्सचर दिया है, बट एक्चुअली ये दोनों से बना नहीं है. जो भी हमको सिम्टम मिला है, इट इज गिवन बाय पॉइजनिंग ऑफ digitalis. And the first poisoning happened with the deathly nausea and vomiting. So these drugs definitely having action on vagus nerve. और vagus nerve क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. और यहाँ पे वही चीज लो हो जा रही है, यहाँ पे वही फंक्शनिंग काम नहीं कर रहा है vagus nerve का. So ये रेमेडी सिर्फ हमारे हार्ट के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन. हार्ट तो है ही उसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है. देन हिपेटिक मतलब लीवर के लिए इंपॉर्टेंट है. किडनी के भी केसेस में हम देते हैं. इफ यू हैव अ रीनल फेल्यूर, स्पेशली डोमिनेंस ऑफ हार्ट इश्यूज, मतलब 20 साल से इसको कार्डियोमेगाली है और अभी रीनल फेल्यूर हो रहा है, तभी भी ये रेमेडी काम करता है. मतलब एज अ क्लिनिकल आई एम टेलिंग यू कि आई एम यूजिंग दिस ड्रग्स इन डिफरेंट केसेस वेयर इज द हार्ट प्रॉब्लम इज डोमिनेंस, बट वैगनस का फर्स्ट एक्शन हार्ट पे ही है. अगर हार्ट का ही फंक्शनिंग स्लो हो रहा है मेरे भाई, तो सब तरफ ब्लड सप्लाई भी फंक्शनिंग का स्लो हो रहा है, और बाकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, लीवर का हो गया, डाइजेशन का हो गया, रेस्पिरेटरी का हो गया, सब स्लो हो रहा है, राइट. एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज हैपनिंग लो ब्लड प्रेशर हो गया या फिर लो पल्स आ गई. अभी हम वो देखते हैं कि ना, हमको एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द पल्स ऑफ डिजिटालिस, तो स्लो है, इरेगुलर है, फीबल है, मिल नहीं रही है, काइंड ऑफ दिस
थिंग्स इज हैपनिंग, राइट? सिंकिंग हो रहा है, उसको लग रहा है अभी अभी कैसा हो जाएगा, गेटिंग सिंकिंग, आई एम गेटिंग फेंट, पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो, दिस इज हैपनिंग. सो first we must need to understand this modality comes from where. This modality comes from the sphere of action, and this sphere of action is on a vagus. तो ये एज अ क्लिनिकल मुझे समझा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. बोगर साहब ने बहुत अच्छे से दिया है ना. बुक में जो दिया है वो समझना बहुत जरूरी है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो दैट आई अंडरस्टूड. सो दैट्स व्हाई डिजिटल इज आल्सो एक्शन, हैविंग एक्शन ऑन अ हार्ट. बट हार्ट का क्या हो रहा है? व्हाई देयर इज अ पल्स इज लो, व्हाई फीबल, व्हाई इरेगुलर, सडनली फ्लटरिंग क्यों हो रहा है हार्ट में? बिकॉज उसका पंपिंग इज स्लो, राइट? सो पंपिंग स्लो यानी सिस्टोलिक प्रेशर लो हो रहा है, सिस्टोलिक नहीं कर पा रहा. दैट इज हैपनिंग. एंड वंस वी गो टू लर्न द ईसीजी, हमको फिर ईसीजी में मिलेगा कि ऐसा सब हो रहा है. देन वी कैन अंडरस्टैंड कि सपोज टू बी हमने अगर 2D को किया है एंड पेशेंट बोल रहा है कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, तो वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पहला रेमेडी कौन सा आने का मांगता है. बट साथ में ये भी सिम्टम्स होना जरूरी है ना. along with that अगर पेशेंट ओल्ड एज है सपोज टू बी एंड ही हैविंग लो ब्लड प्रेशर या लो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, एलवीएफ है, बार बार ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, उनको धड़कन तेज हो रही है, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड आल्सो हिपैटिक हाइपरटेंशन है या हिपैटिक हाइपोटेंशन, हिपेटोमेगाली है. आफ्टर द हार्ट द फर्स्ट ऑर्गन, आफ्टर द हार्ट द फर्स्ट ऑर्गन इज लिवर. हाइपरट्रोफी अगर लिवर हो रहा है तो देन कैन आल्सो थिंक ऑफ देयर आल्सो डिफरेंट रेमेडीज लाइक यू नो. अगर हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट है और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पास मैग्नीशियम भी है. एक एग्जांपल इज डिस्कसिंग. बट इफ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द डिजिटालिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे गड़बड़ है, वैगस नर्व पे गड़बड़ हो रहा है. दैट इज द ऑल द पैथोलॉजी, ऑल द क्लिनिकल सिम्टम्स आर कमिंग अप फ्रॉम दैट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द बोगर, है ना. सो अभी दे आर आल्सो गिवन अ इंपॉर्टेंट सिम्टम सिंकिंग ऑफ और फेंडनेस ऑफ इनटू दिस रेमेडी. फिर फेंडनेस क्यों आ रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? सो बिकॉज ऑफ दिस. देयर आर आल्सो डिफरेंट रेमेडीज फॉर द फेंडनेस या फिर सिंकिंग. स्पेशली द काली बाय को हम डिस्कस करेंगे. तो काली बाय है सिंकिंग बिकॉज ऑफ सम इमोशनल डिस्ट्रेस, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉज है. सो हमको डिजिटली देना कब है? जहाँ पे हार्ट में ऑर्गेनिक रीजन, ऑर्गेनिक कॉज. इफ यू हैव सीसीएफ, कार्डियोमेगाली है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, सिस्टम में काम कर रहा है, वेंट्रिकुलर फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, देन थिंक ऑफ डिजिटल. बोगर साहब ने बोला है ना. सो सी वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल पॉइंट हियर मोस्टली अबाउट द डिजिटल सैंपलिंग. वन इंपॉर्टेंट इसको हमको देना किस पेशेंट के लिए है ना. मतलब आई यूज्ड टू प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी इन माय केस कि पेशेंट ओल्ड एज है, सेनाइल ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज है पेशेंट को. सर 20 साल से इनको प्रॉब्लम है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, बीटा ब्लॉकर लेने के बाद पैरों में स्वेलिंग है, अभी नाउ बीटा ब्लॉकर स्टॉप कर दिया, लेकिन तो भी थोड़ा भी उठे तो हमको सांस खुलती है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, चल नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, लेटे लेटे अच्छा लगता है, थोड़ा भी हिले तो चक्कर आता है, थोड़ा भी हिले लगता है पकड़ लूं जिससे को मैं कहीं गिरना चाहूँ. सो पेशेंट डिस्क्राइब्स यू सिंकिंग, ही कैन मैं डूब रहा हूँ, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा. सो मोस्टली आई यूज दिस रेमेडी इन अ सेनाइल पेशेंट जो बुजुर्ग है, जिनको ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो गया है, चेहरा दिख रहा है फुला हुआ है, उतर गया है, सांस नहीं खुल रही है, सोने पे माउथ ब्रीथिंग ले रहा है, स्नोरिंग है. और जब माउथ ब्रीथिंग लेते हैं बट ऑफ ओल्ड एज में अगर हमको पता है ना टंग आप चेक करके तो यू विल ऑलवेज गेट फ्लैबिटा. यू नो जस्ट टेलिंग यू, याद आया करके, कार्डियक कंप्लेंट है तो स्नोरिंग अलग रहेगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट तो स्नोरिंग अलग रहेगा. जस्ट वांटेड टू एड इट हियर क्लिनिकली. Cardiac complaint, if you have a cardiomegaly, if you have CCF, if you have congestive cardiac failure, patient सोने पे करेगा, he will not smoke like खराटे नहीं मारेगा, he will slow like because they need air, they are taking air from mouth also, and this is one of the most important remedy which helps as a it also notice as a air hunger. उनको हवा चाहिए क्योंकि हार्ट का फंक्शन लो तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो सब बॉडी का फंक्शन ही पूरा लेट होता है. तो दिस इज हैपनिंग इन डिजिटालिस, है ना. तो इन केसेस में मैं मोस्टली देता हूँ. नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर डाइजेशन. इफ यू हैव अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट कंप्लेंट एंड उसका डाइजेशन गड़बड़ है, भाई ब्लोटिंग हो रहा है बार बार, भाई गैसेस हो रहे हैं, हार्ट कंप्लेंट है और मेरा हिपेटोमेगाली या हिपेटिक चेंजेस है, हिपेटिक गड़बड़ है, थिंक ऑफ दिस रेमेडी, इट हेल्प्स. डॉक्टर साहब खाना खाने
के बाद में उल्टी हो जाता है, और इतना मचलट होता है कि उधर खाना पक रहा है, इधर मेरे को इतना मचलट होता है कि लगता है कि नहीं खाना मिला तो मर जाऊं of this remedy. Why is this so? Suddenly your blood supply goes to the stomach from the heart and you get sinking. You feel that kind of a nauseating, deathly nausea feeling. Sometimes vomiting भी हो जाता है. What is the important part here? No, मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि ये रेमेडी कैम्फोरस का काम करता है. यहाँ पर भी कोल्ड स्वेट है, कोल्डनेस ऑफ बॉडी है, कोल्डनेस ऑफ फीट्स है, विथ nausea. What is the difference of camphor and digitalis? तो डिजिटलिस का मेनली फंक्शन निम्नगास्ट्रिक नर्व पे होने के साथ में हार्ट का भी फंक्शनिंग है, बट कैम्फोरा भी कम्स विद द डायरिया कॉल. ऑडिबल अभिषेक भाई? आया नेटवर्क? यस यस, मेरा शायद थोड़ा फ्लक्चुएट हो नहीं चलेगा. हाँ. तो हम कहाँ पे थे? कैम्फोरा पे थे. तो somehow we get the same symptoms, but ये गड़बड़ होता है. अगर हम लोग रेपेटरी में जाएंगे ना, रेपेटरी में जाएंगे, you have that sinking sensation, पेशेंट तो नहीं बता पाएगा, बोलेगा कि मैं गिर रहा हूँ, बट फेंटनेस है स्टमक में, भूख लगी है, स्मेल आया, हार्ट कंप्लेंट है, you get sinking, you will get only DRS remedy, बाकी रेमेडी नहीं है. बट ये हमको क्लिनिक में समझना बहुत जरूरी है. What is the another important point we need to understand for this kind of a remedies, especially in old age patient? वो क्या होता ना कि डॉक्टर साहब मेरी दादी माँ को ना हार्ट प्रॉब्लम में बहुत सालों से, रात को ना उठती नहीं है, उनको आवाज देती है, बोलती है मैं नहीं उठूंगी, मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊं, मुझे डर लगता है गिरने. यू नो, सडनली शी स्क्रीम्स, अरे कोई आओ देखो मेरे को क्या हो गया. शी कैन नॉट एक्सप्रेस क्या हो गया. देन सडनली शी कैन टेल, अरे लगता है दिल रुक गया मेरा. तो दे हैव अ कांस्टेंट एंजाइटी दैट माय हार्ट विल स्टॉप. बट ये होता क्यों है? ये होता इसलिए होता है कि पल्स और हार्ट बीट का रिदम मैच ही नहीं हो रहा है. सो दिस हैपेंस, है ना. अभी हमको ये कब होगा? हम अगर बड़े झूले में बैठते ना, वो जायंट व्हील में अगर हम बैठे हैं, तो वी गेट थिंकिंग इन द स्टमक, दर्द तो होता है, लेकिन समझ में नहीं आता गड़बड़ क्या हो रहा है. तो दैट टाइम दिस हैपेंस. तो शी कॉल्स योर, पकड़ मैं शायद गिर रही हूँ, शायद मैं चली मर तो नहीं जाऊंगी. तो दिस एंजाइटी, अभी उसको अगर उठा के रखे तो बोलेगा नहीं उठा मत, गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को डर लगेगा ऑन मोशन और एक्सर्शन और सिटिंग अप. बिकॉज व्हाई? अगेन द फ्लटरिंग ऑफ हार्ट कम्स. बोरिक में ना ग्लिशन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट ये रेमेडी के बारे में. हार्ट का जो है ना फिब्रिलेशन जो होता है ना, वो उसमें दिया, फ्लटरिंग होता है. हार्ट पल्स मैच नहीं करेगा, पल्स बढ़ेगा लेकिन हार्ट बीट स्लो ही रहेगा, क्योंकि हार्ट ऑर्गेनिकली फंक्शनिंग में स्लो है. बट दे हैव एंजाइटी. फिर एंजाइटी में मुझको चलाओ, मुझे चलना है, और चलने के बाद अभी मुझे यूरिन को जाना. सो नाउ दिस अंडरस्टैंड द सिस्टम हैपेंस हार्ट से लेके तो लिवर से लेके तो किडनी तक. देन आफ्टर पासिंग यूरिन आई फील लिटिल बिट बेटर. मतलब दिस रेमेडी आल्सो हेल्प्स एज अ डायूरेटिक इन अ हार्ट ड्रॉपसी. ड्रॉप्सिकल कंडीशन है बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीजेस. दिस आल्सो रेमेडी हेल्प्स टू वी कैन यूज एज अ डायूरेटिक. यस, I totally agree. हाँ, मतलब ये मैं, बिकॉज उनको खड़ा करके रखो, दे फील लाइक यूरिनेट, कि चलो यूरिन को मुझे शायद पास हो जाएगा उठा के बैठने के बाद में, लेकिन आप उठने के बाद भी दे कैन नॉट वॉक सडनली, बट उनको वॉक करना. यस, सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में डॉक्टर जितेश भाई ने बोला है, डेफिनेटली वी कैन यूज लॉन्ग क्रॉनिक केसेस ऑफ सीसीएफ और कार्डियोमेगाली, स्पेशली वेयर देयर इज इफ यू हैव अ सिम्पटम्स ऑफ टुडी को मैं दिख रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, नो डाउट. So I'm just ventricular failure में wonderful remedy for left ventricular failure. बहुत बार like we have confirmed this. LVF. Yeah, so that is why in the modality they have given aggression on lying on left side. Yes. Why I'm telling you, we just read the Boger साहब को हम पढ़ते हैं कि ये modality दे हम मगअप करते हैं, but ये modalities आई कहाँ से है? If we try to read the ये Digitalis दवा हमको दिया, Digitalis, हाँ, सब पॉइजनिंग पड़ेंगे तो सब कोरिलेट हो जाएगा, सब कोरिलेट होगा, और वहीं से सब सिम्टम्स आते हैं. मतलब एक बार मेरा सीधा बोलना है कि अगर आपको ड्रग को पढ़ना है ना, किसी भी ड्रग्स को, तो उसका एक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ो, तभी आपको पूरा दवा याद रहेगा. अगर आप सिम्टम्स को मदद करोगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस ड्रग इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस. दिस हैपन.
So हमको ये ड्रग कार्डियक डिसीज में दिस इज हेल्पफुल. आई एम जस्ट समराइजिंग कि बोगर साहब ने क्या क्या दिया. हाँ वन जस्ट उसको स्टार्टिंग से ले लेंगे एक बार. डैफ्ने इंडिका जो रेमेडी था वहां से मतलब आपने डिजिटालिस बहुत अच्छे से, आई थिंक एवरी एस्पेक्ट आपने बहुत अच्छे से कवर किया, तो उसमें आई गेस ज्यादा देयर इज नथिंग मच टू इलैबोरेट. सो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आपने इतना कंप्लीटली बात किया है, सो आई विल नॉट टॉक एनीथिंग ऑन दैट. बट जस्ट फॉर डैफ्ने इंडिका जो हमारा सीक्वेंस है उसको मैं सिर्फ कंप्लीट कर देता हूँ. डैफ्ने इंडिका इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर हेडेक व्हिच हैज बीन यूज्ड. It is very good remedy for old age patients who will come with sore limb, bruise feeling, and especially in joint pains. जहाँ पे पेशेंट्स, स्पेशली इफ पेशेंट अगर बोलता है कि उसको टोबैको का क्रेविंग है, जो आपको बहुत सारे जीरेट्रिक एज ग्रुप के पेशेंट्स में मिल जाएगा, मे इट बी अर्बन और रूरल डजंट मैटर, बट अगर टोबैको च्यूइंग है और सोर लिम्ब ब्रूइज फीलिंग वाला पेशेंट आया है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई यूजिंग डैफ्ने इंडिका फॉर दैट. सो डैफ्ने इंडिका का इतना एक मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था जो मेरे को काफी उसमें मिला है, तो वो एक था. And another remedy, second one is Dictamnus. Dictamnus actually, when you read Dictamnus, obviously even I have not used Dictamnus very much, but Dictamnus अगर read करेंगे ना तो आपको दूसरा remedy जो याद आएगा वो Trifolium Pretens है, जो इतना इसके अंदर आपको excessive secretions लिखा है. Increased secretion is the first word that is written here. So increased secretion कभी होता है जब patient को long term कोई illness है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस है, जब भी आपको पेशेंट, बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि वेयर पोस्ट रेडिएशन पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे ओरल अल्सरेशंस हो रहे हैं, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ओरल सिक्रीशंस आ रहा है, या फिर कोई काफी पेशेंट को जहाँ पे हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जहाँ पे बहुत सक्शन वगैरह करते हैं, पेशेंट का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत थिक सक्शन आ रहा है, तो उसमें भी डिक्टामनस कुड बी वन ऑफ द रेमेडीज. डेफिनेटली आई हैव नॉट यूज्ड इट, बट something similar to Trifolium Pretens. That's why I could that's why I would just like to add about Dictamnus. बाकी थर्ड इज डिजिटालिस, जो आपने आई गेस पूरा कवर किया है, उसकी कोई भी एस्पेक्ट तो आपने अनटच नहीं रखा है. सब लोग कमेंट भी करते जा रहे हैं कि आई थिंक अभी तक के हमारे सारे इसमें ये रेमेडी बहुत ज्यादा कंप्लीट वे में आपने डिस्क्राइब किया है. सो थैंक यू प्रवीण भाई. आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक क्लिनिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको इंटरप्ट नहीं किया तो नहीं मेरा हो गया. मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जितने भी यंगस्टर्स है या फिर जो भी डॉक्टर्स है, वांटेड टू टेल यू वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट्स गिवन बाय वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, कि वी कैन नॉट यूज डिजिटालिस इन अ हायर पोटेंसी और इनटू द रिपीटेशन. व्हाई इज दिस सो? इफ यू आर रिपीटेशन, if you are giving this repetition again and again and again and again, what will happen now? आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, सडनली आर्टेरियल डायलेशन बढ़ जाएगा हार्ट में, पेशेंट कैन डाई. Patient can die. Yeah. So what is important in homeopathy? Which drug, when to use, how to use? You can give in 200 or 30. धीरे धीरे आप उसको दे सकते हो या एलएम भी नहीं दे सकते हो, बट यू कैनॉट रिपीट इन हायर डोजेस. सडनली हार्ट फट जाएगा क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है, डायलेशन बढ़ रहा है, तो सडनली पेशेंट कैन डाई. This is one of the most important point we should need to understand as a clinician, when to and how to use digitalis. So we cannot give it blindly to the every patient. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिमिलरली डॉक्टर कोपिकर सर का जो बुक है उसमें भी सिमिलरली एक केस उन्होंने मेंशन किया है कि जहाँ पे लाइकोपोडियम इंडिकेटेड था एंड ही हैड गिवन लाइकोपोडियम एंड फ्रीक्वेंट रिपीटिशन हो गया, एंड ही सेड दैट maybe he said I am not sure whether the patient died because of my high potency repetition, but he said maybe it could have happened that this high potency repetition could have caused this. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस बार कवर किया कि हम लोग देते हैं आपको ना, लेकिन उनको रुकना कब है, सिर्फ देते ही नहीं रहना है, ऑब्जर्व भी करना है और रुकना भी है जब राइट टाइम आएगा तभी. मतलब मैं बोलता हूँ ना कि जो कभी ओल्ड पेशेंट है, दे हैविंग कार्डियोमेगाली और कार्डियक प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट एबल टू गेट, अगर रिवर्स नहीं होने वाला है अपना हार्ट, उसको हमको मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है. तो आजकल पीपल आर लाइक नीड टू गो ऑन हायर पोटेंसी पेशेंट चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमारे दवा से क्या है करके. मेरे भाई हमारे वजह से है, एक्चुअली हमारे वजह से क्या है उसको पता नहीं चलेगा. ट्रू. ओके, तो नेक्स्ट इज डायस्कोरिया. यस. तो डायस्कोरिया ये जो रेमेडी है,
मैं जस्ट वांटेड टू ऐड कि डायस्कोरिन उसका एक्टिव प्रिंसिपल है. आई ऑलवेज रीड मटेरियल मेडिकल लाइक दिस पे. सो व्हाट इज गिवन इन द डायस्कोरिन. तो डायस्कोरिया भी एक जो दवा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है स्पेशली ऑन द नर्व्स. बट ये हार्ट के नीचे काम करे, ऊपर नहीं काम करेगा, न्यूरोगैस्ट्रिक से नीचे. इट्स गिवन इन मटेरियल मेडिका. मतलब उनका भी जो मोडेलिटी दिया है बोगर साहब ने कि यू नो एग्रेशन ऑन मोशन वर्स बैड डबलिंग अब जो उन्होंने दिया है. या आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई दिस मोडेलिटी कम्स. मतलब थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूँ उसके कि हाउ दिस मोडेलिटी कम्स और व्हाई दिस मोडेलिटी कम्स. तो दिस डायस्कोरिन इज एन एक्टिव प्रिंसिपल स्पेशली एक्ट्स ऑन अ नर्व्स. ओके, सो नर्व्स कौन से नर्व्स पे काम कर रहा है. ये नर्व प्लेक्सस पे काम कर रहा है. जो नर्व प्लेक्सस जो हमारे बॉयल मूवमेंट्स, अम्बिलिकस, देन यू नो लार्ज कोलन, स्मॉल कोलन, लार्ज कोलन, यहाँ पे जो नर्व प्लेक्सस है उसके ऊपर ये काम कर रहा है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. व्हाई दिस टिपिकल पेन्स कम्स, टिचिंग, ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, यू नो डॉक्टर साहब पेट में ना ऐसा लग रहा है कि मरोड़ रहा है, जो पकड़ के ऐसा ले कर रहा है, नो काइंड ऑफ यस. व्हाई दिस इज हैपनिंग, यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. नर्व को अगर हम होता है, हमको स्पाज्म आता है तो क्या होता है. तो दिस पेन कम्स फ्रॉम दिस नर्व एंड. Dioscorea definitely having a very good action on a you know abdominal pain. Umbilicus के आजू बाजू में पेन हो रहा है and now that pain is radiating towards the my all areas in the body parts like arms हो गया, legs हो गए. So we call it as a neuralgic pain है. बट ये umbilicus पे ही क्यों होता है, बैक पे क्यों नहीं हो रहा है, थ्रोट में क्यों नहीं है, हार्ट में क्यों नहीं हो रहा, और इधर उधर क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज इट्स डायस्कोरिन हैविंग मोर एक्शन ओनली ऑन एब्डोमेन. जिनका भी स्टमक बहुत वीक होता है ना, जो भी बोलता है डॉक्टर साहब इधर कुछ खा लिया ना यार डायरिया जल्दी हो जाता है, पता नहीं. डॉक्टर साहब मेरा ना एक बहुत बेकार पॉइंट है, सुबह उठा चाय पिया कि भागना पड़ता है, रुक सकता नहीं मैं, सामने लोगों को बाहर निकलना पड़ता है. तो दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर टी. टी लेने के बाद में जिनको पेन होता है या टी लेने के बाद में भागना पड़ता है उनके लिए रेमेडी. तो डायस्कोरिया आल्सो हैविंग अ वेरी गुड एक्शन ऑन स्टमक. डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत वीक रहता है, ये खा लिया वो खा लिया, डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है, भागना पड़ता है पॉटी के लिए. दिस काइंड ऑफ अ पेन दिस इज हैपनिंग. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर आई नोटिस, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया डायस्कोरिया का और स्क्लिडोनियम का पेन मुझे समझ सिमिलर लगता है. दे हैव अ एब्डोमिनल पेन हियर एंड आल्सो दे गेट अ पेन इन बैक. तो वो बोलेगा मेरे को इधर हो रहा है, यू नो. बट व्हाट हैपन डायस्कोरिया क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब यहाँ तो पेन हो रहा है मुझे स्टमक में, इधर ऊपर जाता है और पेन ना मेरे दोनों भी हाथ में फैल रहा है, मतलब इधर उधर जा रहा है, इधर उधर जा रहा है डॉक्टर साहब. दिस इज टिपिकल एक्शन. बट चिल्ड्रन हैव टिपिकल पेन. यहाँ भी डॉक्टर साहब है, यहाँ भी वो दो फिंगर रखेगा, इधर रखेगा और इधर रखेगा शोल्डर के पीछे या इधर, वो बोलेगा टिपिकल इधर पेन हो रहा है डॉक्टर साहब. तो दिस इज द क्लिनिकल पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस नर्व पेन along comparison with digitalis. तो कार्डियक पेन अगर हो रहा है मुझको, digitalis क्या is just shifted to the left hand like spigillia. बट यहाँ पे अगर मुझे पेन कार्डियक पेन हो रहा है just because of boil problems, now it's shifted to the sternum and now this pain is shifting to the my both the arms. This is one of the most typical symptom where we have the dioscorea. ये उसका बहुत typical पेन है. Another important point into the dioscorea जो मैंने बोला कि वो पेट पकड़ के बैठेगा, दबाएगा पेट को, बैठ डबलिंग बहुत दर्द हो रहा है कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है कुछ करो, यू नो. ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है. दैट आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर टी कोलिक. जैसे डॉक्टर बोगस आपने बोला कि टी कोलिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट लेकिन उनको टी चाहिए ही चाहिए. विदाउट टी दे कैन नॉट पास द स्टूल. दिस इज इंपॉर्टेंट रेमेडी. सो आई ऑलवेज गेट कोलोसिन को, डायस्कोरिया को, चिलिडोनियम को कैसे यू नो डिफरेंशिएट करना है. तो कोलोसिन ऑलवेज बेटर विथ डबलिंग अप. वो ऐसा बैठ जाएगा फोल्ड कर, इधर उल्टा है बैकवर्ड्स, इधर उल्टा है बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स के साथ में बोलेगा स्ट्रेचिंग करके मुझे अच्छा लगता है. स्ट्रेचिंग बैकवर्ड्स या स्ट्रेच करूँ मुझे डॉक्टर साहब अच्छा लगता है. पेट का डॉक्टर साहब इसको क्यों, why is doing this? Because already there is a cramp, there is a spasm into the muscles. Yes, you want to release it at nerve level. तो मुझे better लगे. So this is especially into the dioscorea. So this is all about, है ना. आप बताइए. हाँ, one important point में एक से नीचे किसी ने पूछा है कि which other remedy for comparison. So दूसरा तो जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि एक रेमेडी जो है वो कोलोसिन है, एंड जस्ट दूसरा कोलोसिन डिजिटालिस बता दिया. another comparative remedy would be lycopodium. तो बिकॉज उसको भी ईटिंग आफ्टर में कंपैरिजन, आपको ये ड्रग्स को कंपैरिजन करने हैं डायस्कोरिया को. आप कंपेयर कर सकते हो मैक फॉस से, ठीक है. आप कंपेयर कर सकते हो यूपरम मेट से.
So how is max force and Euphorbium? Because in Dioscorea, you definitely know that कि मेरा action अभी nerves पे है. So what is happening? There is spasm. Along with the spasm, there can be hiccups. There can be constant hiccups. Constant आ रहा है. अभी यहाँ पे how to differentiate with max force, Euphorbium and Dioscorea. ये हमें और also with the Nupsomika. ये हमको समझना जरूरी है. Most of the cases comes with Nupsomika. डॉक्टर साहब रात को दारू पिया, सुबह से hiccups बंद ही नहीं हो रहा है. हिचकी मारी रहा हूँ. That's Nupsomika. डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ खा लिया कल ना, पेट में बहुत स्पाज्म हो रहा है, हिकअप स्टार्ट हो गया है ना, और साथ में थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी आ रहा है. इन थिंक ऑफ मैक्स को डॉक्टर साहब इरिटेशन रुक ही नहीं रहा है, ढकार देके कंटिन्यू चल रहा है डॉक्टर साहब रात दिन. Didn't think of that. So Euphorbium always having spasms at esophageal level. मैक्सफॉस स्टमक से चालू होगा. डायस्कोरिया पूरा एब्डोमेन के साथ में इरिटेशन कांस्टेंट रहेगा. तो ये हमको समझना जरूरी है ना. तो इसने बोला ना कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस पॉइंट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्क्राइब डायस्कोरिया विद अनदर रेमेडी. सो अगर हम बोलते हैं ना कि मैक्सफॉस ही बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फॉर एब्डोमेन पेन, डायस्कोरिया भी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू क्यों व्हाट टू. उसका वो ईटिंग वाला जो मैं बताता हूँ ना कि एक केस आया था डॉक्टर साहब मेरे पास में, अभिषेक भाई. ही हैड अ पाव भाजी एट नाइट एंड उसका पेन चालू हो गया, रात भर नहीं सो पाया. कर क्या रहा था डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, उस कमर पे हाथ रख के घूम रहा हूँ कमर का. कर क्या रहा है? स्ट्रेचिंग कर रहा है कि ये यार आसनिक होएगा, इसको ये होएगा. साथ में क्या कर रहा है डॉक्टर साहब? ऐसा किया और डकार देता हूँ, अच्छा लगा. मेरा बाकी रेमेडीज फेल हो गया. मैं बोला कि इससे शायद पाव भाजी खराब होएगा, पाव भाजी कंटामिनेटेड होएगा, तो आसनिक हेल्प करेगा. नहीं किया, दैट्स पूरे हेल्प. Clinically we need to understand, and that is given by बोगर साहब ने क्या बोला है. फिफ्थ पॉइंट बोला है कि ऑब्जर्व द पेशेंट. आप पेशेंट को ऑब्जर्व करो, वो रेस्टलेस है, चल रहा है, घूम रहा है, कहाँ लेट रहा है, कैसे लेट रहा है, उसका पोजीशन, उसका टाइम क्या है. अकॉर्डिंग टू वे यू विल गेट अ फैक्चुअल थिंग्स. ऑन दैट पॉइंट वी हैव टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी. एग्जैक्ट सिमिलर मिलेगा तो दैट इज अ क्लिनिकल पॉइंट फॉर यू. जस्ट एडेड फ्रॉम योर सेट अबाउट द डायस्कोरिया. यस. नेक्स्ट इज बाय डिफ्थेरिनम. डिफ्थेरिनम इज अ, आप भी कुछ ऐड करो ना. डिफ्थेरिनम मेरे पास ज्यादा नहीं. डायस्कोरिया लाइक आपने बस मैंने डिफरेंशिएशन में बोला ना, बाकी तो जैसे बोला वो सिमिलरली जैसा वो आपने एक्सप्लेनेशन बोला है ना, कि वो टिपिकली हम लोग बहुत बार स्टमक का जो वो प्रॉपर जैसे वो पकड़ते हैं ना, तो हम लोग वही पकड़ने को हम लोग बेटर बाय प्रेशर समझ लेते हैं. बट इट इज वी हैव टू लुक एट द आर्चिंग बैक दैट दे आर ट्राइंग टू शो. मतलब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कोलोसिन आल्सो रेस्टलेस, ये भी रेस्टलेस है. बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसको ही अगर समझ लिया, क्योंकि अक्यूट्स का किंग होना जरूरी है. अक्यूट का किंग हो तो प्रैक्टिस में चल जाएगा सब. अक्यूट्स का जिसका नहीं है, जिसके अक्यूट्स के वांदे हैं, उसका मेरे को लगता है प्रैक्टिस धीरे धीरे का. अगर माइन्यूट चेंजेस है. हाँ जी, माइन्यूट चेंजेस है, डिफरेंशिएट करना वो सब भी हमको आता है. वो लास्ट जो पार्ट आपने बोला ना, आई टोटली एग्री विद दैट, कि वो जब भी अब्डोमेन प्रेस करके बैक को आर्च कर रहा है ना, उस चीज का वो ऑब्जर्वेशन है. ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है जो डायस्कोरिया में है, और एग्जैक्टली इसीलिए डायस्कोरिया आपको हेल्प करेगा. वो यूजुअली पीपल टेंड टू गो इनटू कोलोसिन व्हेन दे हैड टू गो टू कोलोसिन आर्सेनिक में चले गए जबकि उनको डायस्कोरिया में आना था. सो बस उसी चीज के लिए बहुत अच्छा सेशन जा रहा है. लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो गए. कोशिश है डिफ्थेरिनम का मेरा तो ज्यादा मतलब, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर थ्रोट. ऑब्वियसली डिफ्थेरिनम इज अ नोजोड, तो डिफ्थेरिया का पूरा उसका एक्सट्रैक्ट से बना है. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो यहाँ पे आपको मिलेगा, थिक ग्रे, obviously clinically बहुत बार many a times you will confirm that diphtheria thick gray process है, chronic cough है, loud cough है, feverish feeling है, high grade fever, low grade fever, ongoing low grade fever for a longer period of time. ये सब बहुत important रहेगा. but it is also a very good intercurrent remedy जब आपको diphtheria और कोई chronic cough ठीक से settle नहीं किया गया था, or maybe it is a suppressed cough, and then it goes on for a longer time, then patient comes with some another pathology. But if you encounter with such kind of symptoms ना, बीच में I think मैंने खुद ने भी ये सरकार सर से जब भी हम लोग गए थे, सरकार सर से ये हम लोग ने ऑब्जर्वेशन सीखा था, और सरकार सर ने बोला था कि जब ऐसा है, जब कोई कॉफ
लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड वेल वाला कॉफ जब पास्ट हिस्ट्री में मिलेगा. So do clear that layer, because you know that whoever has worked with Sarkar sir, they know that he always teaches to clear the layers, कि कहीं ना कहीं कोई layer suppress है उसको clear करो पहले. So this I think अभी exact वाला symptom बहुत कम मिलेगा शायद, but I think जितना diphtherinum के classic cases मिलेंगे उतने ही cases में we should also look कि कहीं अगर past history है ऐसे cough का and it is not treated well, we can use it very well. बिल्कुल एग्जैक्टली. मैं मतलब लाइफ में अब तक मेरा 16-17 साल हो गए प्रैक्टिस में, सिर्फ 2 ही बार मैंने यूज किया है, वो भी बड़े मुश्किल से. जस्ट वांटेड टू शेयर द केसेस व्हाई आई एम टेलिंग यू. ये केस था मेरे बाद में कभी भी आया, डॉक्टर साहब टॉन्सिलाइटिस ठीक ही नहीं हो, टॉन्सिलाइटिस उसको ठीक ही नहीं हो रहा है. ऑलवेज कभी भी देखो 10-15 दिनों के चिपक रहा है टॉन्सिल, फीवर आ रहा है उसको, WBC हाई जा रहा है, लिम्फोसाइट हाई जा रहा है, ESR हाई जा रहा है ना. तो ये पूछ रहा हूँ मैं, बेटा पेन है क्या? पेन नहीं होता है, टॉन्सिलाइटिस आ रहा है. आई ट्राइड एवरीथिंग, आयोडीन से लेके वगैरह 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 सब ट्राई टू अंडरस्टैंड गड़बड़ किधर हो रहा है इसके साथ. तो जब भी मैं एक्सपोज हो रहा हूँ पेन या कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, खाना खा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसका इम्यूनिटी डाउन. द फर्स्ट थिंग इज हैपनिंग इज कॉन्स्टेंटली ऑन टॉन्सिलाइटिस, एंड इट इज गिवन दैट इफ यू हैव ऑब्स्टिनेट टॉन्सिलाइटिस विथ वो उसके ऊपर येलो थिक फॉलिकुलर्स होता है ना, हो रहा है उसको, एंड फाउल स्मेल आ रहा है उसमें से, इवन तो मैंने वो केस को ना रेफर किया था ENT वाले, एंड ही एडवाइस मी टू गो फॉर अ बायोप्सी, मतलब वो स्पूटम विटम करके ये लेते हैं. मैंने सर इससे क्या होगा, बोले वो लोकलाइज अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो रहेगा, समझ में आएगा. मैं बोला यार यहाँ पे फिर मैं ये क्यों नहीं दूं डिप्थेरिनम, गिवन नो. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग 30. इतना अच्छा काम किया उसने, उसका ब्लड रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आने लगा, एंड देन स्लोली उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा. एक्चुअली दिस इज वन इम्पोर्टेंट केस इन माय लाइफ. अनदर केस जिसको मैंने दिया था, ही हैड अ वेरी बैड फेरिंजाइटिस. इतना बैड हो गया था उसका फेरिंजाइटिस कि ऐसा लग रहा था कि अब इसको ना भाई कैंसर होएगा, ऐसा लग रहा है. बट रिपोर्ट सब उसका नॉर्मल निकला, उसका रिपोर्ट सब नॉर्मल निकला. दैट टाइम आई प्रिस्क्राइब ये डिप्थेरिनम. बट ये देना कब है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हमको ब्लड रिपोर्ट्स में चेंजेस दिखे. ब्लड रिपोर्ट्स ब्लड स्ट्रीम में आपको दिख रहा है कि ये नहीं, ये गड़बड़ है, WBC बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, दैट टाइम यू थिंक ऑफ डिप्थेरिया, क्योंकि दिस रेमेडी ऑलवेज हैविंग अ गुड एक्शन ऑन दिस ब्लड स्ट्रीम. बेसिकली जब ब्लड स्ट्रीम में गड़बड़ हो रहा है, then it suddenly acts. This is a basically remedy of catarrhal remedy, having a very good action on mucous membrane of respiratory tract, throat, nose, tonsils, pharynx, larynx, फिर नीचे जाके bronchus, and then धीरे-धीरे. So that time we need to also understand that action किधर हो रहा है. तो ये 2 जगह पे मैंने डिप्थेरिनम दिया था. नो डाउट पेशेंट को पूछो टॉन्सिल्स हो रहा है, पेनलेस टॉन्सिल्स है, बुखार आ रहा है मुझको, आई एम वेरी लेथार्जिक, आपको लगेगा कि ये एसिड ग्रुप का रेमेडी, इतना सीवियर प्रोस्टेशन, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं मुझको यहाँ पे, है ना, दर्द मुझको बिल्कुल नहीं है. जस्ट फॉर प्रोस्ट्रेशन, जितना ये लेवल ऑफ प्रोस्ट्रेशन आएगा ना, it goes in comparison only the kind of malignant pain with prostration. Another very good comparison would be Merck sinusitis. Merck sinusitis would always, मतलब इतना closely जाएगा, आप बहुत बार उसको maybe each of the remedies can make them as a ghost remedy, मतलब maybe इसका डिप्थेरिनम का ghost remedy Merck sinusitis रहेगा, बहुत बार लगेगा ये है, लेकिन maybe निकलेगा ये. So बहुत अच्छा आपने minor differentiation बताया है. So let's go to the next remedy, Drosera. Drosera के बारे में बताइए भाई. Drosera तो we will come to your answer after some time. झलक, okay? Drosera भाई. क्या पूछा उन्होंने? ठीक है, हम बाद में देखेंगे. नहीं, वो पूछ रहे हैं कि अगर नोजोड है तो हाइपोटेंसी में क्यों दिया, लो में. Very good question, my dear friend. You have asked a very good question. आप बुक्स को खोलो और पढ़ो पैरेंटन को क्या दिया है. We cannot use diphtherinum also in a higher potency. 30 में 20 में उसके नीचे रखो. क्यों? कि अगर पॉइजनिंग स्टार्ट हो गया तो वो उसका प्रूविंग से पेशेंट मरेगा. एंड माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज डिप्थेरिया? पेशेंट कभी डिप्थेरिया से मरता नहीं है, वो मरता है एस्पिरेटरी निमोनिया से. आप अभी बोलेंगे ये कैसे, क्या पॉसिबल है ना. पेशेंट कैन नॉट ड्रिंक लिक्विड, तो सडनली ड्रिंक करेगा तो उसको वोमिट होएगा नाक और मुंह से, और वो अगर एस्पिरेट करेगा तो निमोनिया डेवलप होता है. व्हाई निमोनिया? इन दिस रेमेडी स्पेशली फॉर अ कटरल कंडीशन ऑफ LRT एंड URT, है ना. तो
इधर वो मरेगा. Same like digitalis, we cannot use this remedy also in higher potency. I would like to add it here. This like next remedy Brothops हो गया, Crotalus horridus हो गया, Elaps हो गया, आप lactasis पकड़ लो. We cannot anti-hemorrhagic remedy we cannot use in a higher potencies. या रिपीटेशन नहीं दे सकते. वो ब्रोंकस पूरा खराब कर डालेगा, पूरा उधर नेक्रोस डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा. Just wanted to, Yes. उसका ब्लड निकलेगा. So I hope झलक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. ओके, सो बहुत अच्छे से बताया भाई आपने. लेट्स गो टू ड्रोसेरा. यस, ड्रोसेरा. तो ड्रोसेरा इज आल्सो रेमेडी. वो भी कटावल कंडीशन में होता है. ड्रोसेरा सबको पता है कब देना है, क्या नहीं देना है. वी वांटेड टू ऐड मोर पॉइंट्स इनटू दिस कि ड्रोसेरा एज रिव्यूड इन नोट एज स्पास्मोडिक कफ है, हुफिंग कफ है, डेथली कफ है, एंड यू नो दे वांटेड टू सॉल टाइप कफ है. यस. बट ड्रोसेरा का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ कि ड्रोसेरा का कफ समझने लिए हमको क्लिनिकली क्या समझना है. और डॉक्टर साहब इतना कफ आता है कि उसको यहाँ पे जो है ना, उसको निकाले बगैर मजा नहीं आए, उसको निकाले बगैर मेरा दिल नहीं मानेगा. उसको निकाल. वन ऑफ माई पेशेंट, मैं बताता हूँ, एक पेशेंट मेरा था, इतना कफ आता है, उंगली डाल के निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से निकलता कुछ भी नहीं. तो ही हैड अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ समथिंग इज स्टक अप इन माय थ्रोट, है ना. और इतना चोक हो जाता है, इतना मुझे स्पास्मोडिक कफ आता है कि मैं खांस के पूरा उसको निकालने की कोशिश करता हूँ. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ स्पाज्म पेन आल्सो इनटू द कोस्टल रीजन और एब्डोमेन. तो ये स्पाज्म सब तरफ है, नॉट ओनली ऑन वन पार्ट. ये कफ है. ड्रोसेरा सबको पता है. जस्ट वांटेड टू ऐड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू दैट. बोगर साहब ने बोला कि दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन्स. अभी बोन में ट्यूबरकुलोसिस कैसा होएगा, किधर होएगा ना. एग्जांपल में देता हूँ. सो आई हैव सॉल्व very beautiful cases of POTS disease, you know. Wonderful remedy for tuberculosis. For a POTS disease, अगर आपको स्पाइन में पता चल रहा है कि इधर POTS disease है भाई, तो you can think of this. POTS disease. I totally agree. अभी क्या ना रेपर्टरी में दिया है क्या स्पाइन नेक्रोसिस, POTS disease या tuberculosis, उसमें लेकिन चिल्ड्रन में दिया है. बट ऑल्सो दो जो यंग एज पेशेंट्स हैं, उनको अगर पॉट डिसीज हो रहा है, if you have a finding that some kind of a necrosis or some kind of a destruction of that vertebrae into the MRI, then also think of Drosera. अब भाई ये सिम्टम आए कहाँ से, ये सब सिम्टम्स आए कैसे, मैं बताना चाहता हूँ. जस्ट वांटेड टू ऐड कि मेडिका पढ़ना है तो साथ में लोगों सबके एलन एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ो कि जब वो बकरी ड्रोसेरा के पत्ते खाती है ना, तब शी स्टार्टेड कफिंग, देन पैचेस हो रहा है लंग्स में. एंड ये जो कॉफ का जो बोल्ड में लाइन लिखा हुआ है, आई गेस ये वहीं से आता है. जो जिन्होंने बोल्ड में लिखा है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियोडिकल फिट्स ऑफ चोकिंग कॉफ, उन्होंने बोल्डली लिखा हुआ है. सो आई गेस ये वहीं से आता है. हाँ, अभी ये ड्रोसेरा में इंपॉर्टेंस दिया कोल्ड थिंग से. मुझे एग्रेशन क्यों है, क्योंकि पेड़ ये जो पत्ता है, जो पेड़ है, वहीं पलता है जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. ठंड में आप खाओगे तो तकलीफ वैसे ही होना है. तो दैट्स व्हाई ही इज गिविंग ड्रोसेरा. एक बहुत अच्छी सी बात बोली है कि व्हेनेवर यू हैव अ स्पास्मोडिक कफ विद द ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, थिंक ऑफ ड्रोसेरा. मतलब डॉक्टर साहब एसी का ठंडा हवा लिया, इतना कफ आता कि मैं कंट्रोल नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ता. देन थिंक ऑफ ड्रोसेरा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि स्पास्मोडिक कफ नहीं है, उसका मॉडलिटी में हमको ये भी इंपॉर्टेंट जरूरी है कि समझना जरूरी है, इसमें ये दिया है, यू नो. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ सीवियर स्पास्मोडिक कफ अलोंग विद द पेन इन द एब्डोमेन. रीजनल पेन हो रहा है मेरे को, बहुत दर्द हो रहा है, दैट टाइम वी कैन थिंक ऑफ ड्रोसेरा. देन और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं. यस, जो स्पास्मोडिक कफ इतना होता कि देन इट एंडेड इनटू द वोमिटिंग, और म्यूकस निकालूंगा, वोमिटिंग निकालूंगा, तो देन आई फेल्ट बेटर. This is one of the important part. Now, in respiratory complaints, most of the time we feel that छींके आई तो मुझे अच्छा लगता है, पर यहाँ उल्टा है, छींके आई तो मुझे बहुत सारा दर्द होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्पाजम्स मेरे इर्द गिर्द चेस्ट में, एब्डोमेन में, बैक में फैला हुआ है. मैं छींकू ना डॉक्टर साहब, तक पेन होता है, मैं छींक भी नहीं सकता, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि दर्द ना हो जाए. This is one important point we need to understand in this क्या बोलते हैं हम लोग इसमें. तो मसल्स पूरे स्पाज्म है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, इंटरकॉस्टल मेरा मसल्स पूरा पेन में स्पाज्म होकर तकलीफ होता है. देन हाउ टू डिफरेंशिएट दिस कफ विद द स्पॉन्जियोटोस्टा.
ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉन्जेनिटल सेम कफ है, यहाँ पे है तो वहां पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये चेस्ट पकड़ के बैठ, स्पॉन्जी का कफ में आपको आवाज आएगी, यू नो लाइक कॉइन नहीं, क्या हम कॉइन फेंकते हैं, टॉस करते जमीन पे गिरता है तो खड़ा खड़ा बोलता है, एंटीमटैड वाला पेन आएगा, आवाज आएगा, लेकिन एंटीमटैड में एक्सपोर्टेशन रहेगा, स्पॉन्जिया में आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, वो खंग 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 खांसेगा, यू नो। यहाँ पे डेथली स्पाज्म रहेगा, डेथली उठिंग कफ, डॉक्टर से काइंड ऑफ स्पॉन्जी में खांसेगा, लेकिन वो आवाज आएगा, आपको समझ कि ब्रोंकियल कफ आ रहा है, अंदर से आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ड्रोसेरा, हमको खांसते खांसते इफ यू ऑब्जर्व ना, उसका ये जो है ना ट्रकियल नॉच, ये भी उड़ेगा, ये ट्रकियल नॉच उसका उड़ेगा, क्योंकि वो एयर हंगर है ना, वो ले रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू ऑब्जर्व। तो ये हमको समझ में आया, बहुत छोटी छोटी चीज है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ अभिषेक भाई, क्लिनिकली आपको पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथिंग ले, तो उसको कफ इंस्पिरेशन में आ रहा है कि एक्सपिरेशन में आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ड्रोसेरा का कफ एक्सपिरेशन में आता है, दैट्स व्हाई ही गेट चोकिंग ऑफ सेंसेशन इन द लैरिंक्स एंड फंक्शन इन द कफ। अभी इंस्पिरेशन में जो कफ आ रहा था, कौन सी रेमेडीज उनको समझना जरूरी है कि जहां भी एक्शन हमारा यू नो पल्मोनरी लोअर लोब्स में वगैरह है, मेडियम पकड़ लो, जो भी अस्थमेटिक कंप्लेंट्स है, इंस्पिरेशन में मैं हवाई ले ही नहीं पा रहा हूँ भाई, कब कफ आ रहा है, बट इनटू दिस यू मस्ट नीड टू ऑब्जर्व ना, उसको बोलो कि भाई लंबी लंबी सांस है, अच्छा एक्सप्रेशन में कफ आ रहा है, देन थिंक ऑफ स्पॉन्जी का उल्टा दिखेगा, वी कैन नॉट टेक अ ब्रीथ, क्योंकि ब्रोंकियल ब्रोंकस में इन्वॉल्वमेंट है, स्पाज्म आ रहा है ब्रोंकस में, यहाँ स्पाज्म पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द ये क्या बोलते हैं हम लोग clinical point where we need to understand. Please add it from your side about the Drosera. Drosera में ये most of the time, मतलब most important will be the cough is never in the daytime. It's most of the times the aggravation is in the night. And is in the long paroxysms. जैसे आपने बोला कि it is coming with deathly choking, and there is Atul bhai is asking maximum effort and minimum sputum. I'll agree. Exactly. इतना sputum नहीं है Atul bhai. मैं बोला ना, पेशेंट बोलेगा इधर थोड़ा सा फूक अटका है, उसको निकाले बगैर जी नहीं मानेगा, निकाले बगैर मेरे को अच्छा ही लगेगा, उंगली डाल के कुछ भी डाल के उसको निकालने की कोशिश करेगा। Yes. So this is about Drosera. The next remedy is Dulcamara. तो Dulcamara का मेरा तो सिर्फ एक ही, मतलब जो लोग अभी यहाँ महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से अगर मराठी जानते हैं ना, तो वो मेरे को ये इस लाइन पे कोरिलेट करेंगे सिर्फ, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे को जो एक ही लाइन बोला, मुझे आज तक इसका याद रहता है कि कॉलेज में हमारा, बिकॉज आई वाज इन पुणे, सो जिथे जिथे ठंडी वारा तिथे तिथे डलका मारा। एब्सोल्युटली राइट, एक चीज हमको सिखाया था। बट ठंडी वारा कधीचा हे इम्पॉर्टंट है ना, ठंडी वारा कब का, तो जो बोलते ना समर कोल्ड, अभी ठंड खत्म होते जा रही है एंड समर डे चालू हो रहा है, जैसे जैसे ठंडी वारा देते देते डलका मारा डेफिनेटली है। तो डलका मारा के बारे में मैं एक बोलूंगा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी विच एक्ट्स ऑन द नर्व। ये भी रेमेडी जो है ना नर्व्स पे काम, आज लकीली जो 18 मेडिसिन है हमारे पास, हम जो रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं, दे हैविंग एक्शन ऑन नर्व्स एंड स्क्रोफुलस कटरल कंडीशन पे ऊपर काम कर रहे हैं। दिस रेमेडी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिंग ऑन ये म्यूकस मेम्ब्रेन एंड न्यूमोगास्टिक। तो जो नर्व्स पे उसका एक्शन है ना, इसीलिए आप जब भी एलन स्किनर होते तो इस्चूरिया जो वर्ड लिख के दिया है, इस्चूरिया जो है exactly. ठंडे पानी में खड़ा हो गया कि बेचारे का गीला, वो बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसा लगा ना मेरे नस नस में ठंडी भर गई, वो हवाई में आने में नस नस में भर गई। तो विल एक्सप्लेन। So this remedy has a sphere of action mostly on nerves and the mucous membrane, especially on the mucous membrane. So it increases the secretions of mucous membrane. तो अभी हम लोग लाइक डलकामारा हम हमेशा जानते हैं ये इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिक्स रेमेडी ऑन विच यू कैन अर्न योर ब्रेड बटर। इतना इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बट तो भी बोगर साहब ने दिया है कि मोडेलिटीज में कि कोल्ड है, चीली से एग्रेशन है, कोल्ड एयर से एग्रेशन है, अनकवरिंग से एग्रेशन है, नो ठंडे पानी में पैर डाला तो भी गड़बड़ है, ठंडे बर्फ हाथ में लिया तो भी गड़बड़ है। बर्फ से मेरे को याद आया, वह छोटा सा केस शेयर करता हूँ आपको डलकामारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा एक दोस्त है बचपन से वो उसका आइस गोले का उसका गाड़ी है, तो हर बार वो आता है धूप काले में, और क्या होता ना जब भी उसका जून महीना आता है तो वो लेके आता है, अरे यार देखना इसमें ना पस भर गया बूढ़े में, तभी बोलेगा यार इसमें पस भर गया,
तो एवरी टाइम उसको बोलते हैं ना इन्फेक्शन होता है ठंडे पानी में, उसको क्या हाथ बर्फ से पकड़ता है, बर्फ से काम करता है। तो मैं उसको आई गिवन ऑल काइंड्स ऑफ रेमेडीज, काम ही नहीं किया, मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर पास हो रहा है, फिर हो रहा है। देन आई रीड समवेयर एल्स कि भाई डल्कामारा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रेमेडी, दोज आर वर्किंग इन अ कोल्ड फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको चिलबेंस हो रहा है या फर्स्ट फंक्शन हो रहा है, देन थिंक ऑफ डल्कामारा। अभी इसमें गड़बड़ क्या, उसका काम कर करके हाथ इतना गीला हो रहा है, इतना स्किन इतना नेल पेट जो है इतना गीला हो रहा है, उसको सडनली एब्सेस फॉर्मेशन हो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। So this is also important remedy where we can use in this kind of abscess where patient is working in a with ice or cold factories. So yes, here in Dulcamara I wanted to add it actually excessive secretion है यहाँ, damp cellars, cantonate डैम अभी किसने अभी डाला कि अर्टिकेरिया का है, अर्टिकेरिया ड्यू टू कोल्ड, माय डियर फ्रेंड डॉक्टर ईश्वर आई डोंट नो व्हाट इज नेम, अर्टिकेरिया का कोल्ड तो फिर रफ में भी है मेरे भाई, अर्टिकेरिया कोल्ड तो फिर पल्सडिला में भी है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसा करना है, अर्टिकेरिया बाय लाइंग ऑन डैम्प, डैम्प अगर मेरा ठंडा बहुत ठंडा घर है, मेरा जमीन बहुत ठंडा, मैं उसको लेटता हूँ, अगर अर्टिकेरिया थिंक ऑफ दिस रेमेडी, अर्टिकेरिया बाय कोल्ड में भी आपको रस्ट ऑफ है। अब इम्पोर्टेंट एक कॉन्ट्रडिक्टरी बताता मैं एक्चुअली, दिस डल्कामारा इज आल्सो वेरी गुड इंपॉर्टेंट रेमेडी इन रोमाटॉइड आर्थराइटिस। ये सुन के आपको अजीब लगेगा, रस्ट ऑफ तो है ही, बोगर साहब ने दिया या बोरिक समझा कि ये रेमेडी रस्ट ऑफ के साथ में काम कर रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू सम हो है, बट रस्ट ऑफ का गड़बड़ गया है, दे आर गेटिंग एग्रेशन बाय कोल्ड, और यहाँ पे अर्टिकेरिया एम्युलेशन बाय कोल्ड है। बट कौन से आर्थराइटिस में हमको डल्कामारा देना है, जहां पे इफ्यूजन ज्यादा है, डॉक्टर साहब इफ्यूजन आर्थराइटिस हो गया, मेरा ये टंग ज्वाइंट फूल गया, ऐसा दबाया तो भी लग रहा है कि अंदर पानी भरा है, नो पानी भरा है, आपको दिख रहा है ये लाल हो गया एकदम, देन आल्सो थिंक ऑफ डल्कामारा। क्यों, स्क्रोपुलस रेमेडी आपको दिखेगा कि ये भरा पड़ा है, तो आपको दिखेगा कि ये रेमेडी मेरा काम, मतलब इट हेल्प्स। एंड आल्सो बोगर साहब ने दिया है कि दिस रेमेडी is important for paralysis of single part, paralysis of vocal cord, paralysis of tongue. Why? Because involvement of pneumogastric nerve paralysis. ये इसका typical important point है। And very well it is compared कि जैसे ये short ऐसे आपने अभी आप बोला ना कि जैसे short term है, जैसे effusive osteoarthritis है, या फिर कहीं पे भी और ऐसे effusive changes दिखते हैं, यहाँ पे neuralgic complaints हैं, कोल्ड एग्रेवेशन है, टेकिंग चिल इज एग्रेवेशन। तो बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इट इज कंपेयर्ड, आगे ये आपको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हेल्प करेगा दिस रेमेडी, जो कितना भी हम इसको कंटिन्यू, मेरे हिसाब से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए बराइटा काप दिया गया है, yes, बिकॉज इसके सारे कंप्लेंट्स है ना, ये बहुत सिमिलर प्लेन पे आपको थोड़ा सा डीपर एक्शन में बराइटा काप में लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। तो डल्कामारा की हम अगर बात करेंगे, मतलब डॉक्टर साहब मेरे को हर साल में 3 बार पानी निकालना पड़ता है, मेरा आर्थराइटिस है, ईएसआर है, आरए पॉजिटिव भी है, लेकिन साल में 3 बार पानी निकालना पड़ता है, दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ डल्कामारा, आपका आरटी काम नहीं करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डल्कामारा, डॉक्टर साहब मैंने आम खा लिया, मैं धूप में चला गया, मेरे को डायरिया हो गया, है ना, तो थिंक ऑफ डल्कामारा आल्सो। समर डायरिया में इट हेल्प्स डल्कामारा। नाउ wanted to share which is very important for Dulcamara clinically. Dulcamara रोस्ट ऑफ बता दे मैडम आपको। So important point थोड़ा बता दिया, थोड़ा बाद में वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। Yes. Dulcamara का वन ऑफ द मोस्ट, देखो ये ब्रेड बटर के लिए हमारे पास में 10 में से 2 पेशेंट रिंग वर्म क्या है, Dulcamara इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर रिंग वर्म, है ना। तो हमको अभी रिंग वर्म समझना कैसा है, अभी हमको कौन से रिंग में देना है, कौन से रिंग में सेपिया देना है, कौन से इसमें रस्टॉक्स देना है, कौन से, हाँ बोलो ना आपको। नहीं बस वही, वो जो इनिशियली जो आपने फर्स्ट पॉइंट जो बोला था, इट इज अ रेमेडी फॉर वेयर देयर इज एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ पे रिंगवर्म में से डिस्चार्ज आता रहेगा, जहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज आ रहा है, पेशेंट बोलेगा कि खुजली करने का डॉक्टर चिपचिपा हो जाता है हाथ, इतना खुजली होता है। एग्जैक्टली ये मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एब्सोल्युटली देखो उसको हम बोलते हैं ना कि ये है, इसका ना चमड़ी ना पूरा वीपिंग रहता है, वीपिंग एक्जिमा में आल्सो यू कैन थिंक ऑफ डल्कामारा। बट वीपिंग डॉक्टर साहब मेरे को ना बहुत खुजली होता है इधर फोल्ड्स में,
और चिकट पानी निकलता रहता है, मैं परेशान हूँ। निकलता और रहता। अगर रेनी सीजन आया, समझ लो बादल आ गए तो मैं गया काम से, बादल आए तो उधर से चिकट पानी निकलते ही रहता है। पंखे में बैठूं तो ऑप्टर थोड़ा सा सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, जो वहां चमड़ी लगता है, कोई प्लास्टिक का प्लास्टर लगा दिया। तो दिस इज टिपिकली गिवन इन डल्कामारा। रिंग वेट रिंगवर्म उसको बोलते हैं, गीला गीला रिंगवर्म है, पोर्ट्स में, ग्रॉइन रीजन में रिंगवर्म है। मोस्टली जो लेडीज ब्रा पे वो पट्टी रहती है ना, उधर पसीना जमा रहता है। या फिर अभी मैं थोड़ा सा मतलब विलेज लेवल में बात कर रहा हूँ, मेरे जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमने साड़ी पहना अंदर पर करे, वहां पूरा पसीना जमा रहता है, चिपचिप होके पूरा वहां गीला रहता है, निकलता नहीं, पानी चलता ही रहता है हमेशा। तो दैट टाइम थिंक ऑफ डल्कम रिंगवर्म के लिए, है ना। टोटली आई टोटली एग्री, है ना। और स्पेशली अगर बोलो ना, मैं सेपिया बोलते हैं, सेपिया ऑन इन एवरी स्प्रिंग यू कैन थिंक ऑफ सेपिया, बट सेपिया नेवर यूज रिंगवर्म फॉर अ डीप सीटेड। यहाँ पे डीप सीटेड रिंगवर्म है जो कंटिन्यूसली रो रहा है, मतलब वीपिंग, ऐसा पानी ग्लूटेनियस डिस्चार्ज बह रहा है, आपको दिख रहा है कि इस तरह से बह रहा है, देन थिंक ऑफ डल्कामा। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर वीपिंग एक्जिमा, स्पेशली बच्चा पैदा, मतलब बोलते हैं ना, डल्कामारा वेरी गुड रेमेडी फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस चाइल्डहुड में। अब उसका पानी निकल रहा है, बच्चा पैदा हो गया, डॉक्टर साहब 2 महीने का ही हो गया मेरा बच्चा, उसको इधर भी इचिंग है, पूरा बॉडी पे ऐसा इचिंग कर, हमको लगेगा ये रिंगवर्म है, बट वो डर्मेटाइटिस होता है, एटोपिक। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंफर्मेटरी पॉइंट ऑफ द डर्मेटाइटिस शुड बी वीपिंग, वहां से म्यूकस चिकट पानी निकल रहे थे, थिंक ऑफ डल्का। या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया था मैं, लास्ट पॉइंट सिर्फ मैं डल्कामारा का बोल देता हूँ, उसके बाद आप कंप्लीट कर देना। डल्कामारा आई हैव सीन वन ऑफ द केसेस, आई एम जस्ट कोटिंग, जो भी मेरे यहाँ पे हमारे जो क्लिनिक के काफी लोग आए, डॉक्टर कोनेन, डॉक्टर ईशा कोठारी, काफी लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोगों ने एक केस देखा था, वंडरफुल। फारूक मास्टर सर ने एक पेशेंट में यहाँ पे पूरा वॉर्ड्स भरा हुआ देखा था। हाँ, वन साइड मतलब पूरा नेक भरा हुआ था। सर ने सिर्फ इतना ही बोला, एक डोज डल्कामारा सीएम का दे दो। एंड हम लोग को कुछ उस टाइम पे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो ना यूजुअली सर फर्स्ट शॉट में सीएम देने को बोलते ही नहीं है, सर बहुत सीक्वेंशियली जाते हैं, सर बहुत सिस्टमेटिकली जाते हैं। सर ने बहुत कम बार ऐसे, मतलब मेरे को 11 साल में बहुत कम बार ऐसा बोला है कि एक सिंगल डोज सीएम का दे दे। एंड 3 days फुल नेक क्लियर था। एंड हम लोग सब शॉक में चले गए थे कि सर तो आप बहुत ये क्या हो गया, बोला ये क्या है, ये कौन सा तीर मार दिया आज सर आपने पूरा नेक। सर ने बोला बेटा यही है, पूरा क्रॉप्स था ना, इट लुक्ड लाइक यहाँ पे वहां पे खेती हुई है, पर इतने ज्यादा लाइन में थे, इसीलिए वो उन्होंने बोला कि कितना कैरेक्टरिस्टिक है उसका, देखो वो वैसा आपको वॉट यहाँ पे 1 मिलेगा, वहां पे 2 मिलेगा, उसका नेक पूरा भरा हुआ है। आपने देखो इट इज क्रॉप लाइक, सुपर। 1 dose 3 days पूरा नेक क्लीन। सो दिस इज Dulcamara for warts also. Don't forget. Somebody asked how to deal with graphitis and Dulcamara. Simple है, graphitis always never use ना। Dulcamara में आपको whipping मिलेगा, whipping के बाद it becomes dry, then it becomes scaly, patchy, moist रहता है आपको उसका ये the skin। important point भूल गया था मैं। हाँ, जैसा हम बोलते हैं ना कि it's given infant eczema में Dulcamara दी है, the same wise we can think of digitalis for the sinuses of infant where heart is not working for। digitalis का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइनोसिस का। मैं तो बोलता हूँ कि digitalis इज अ कार्बोवेज ऑफ हार्ट। अगर उसको पंप करवाना है, उसको अगर अपने को हार्ट को अगर सडन पंप करवाना है, डायलेशन करना है आर्टरीज पे, तो आयोटा को काम करवाना है, तो थिंक ऑफ digitalis। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लिनिकली वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ, मतलब हर बार साइनोसिस हो रहा है बच्चों में, तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ कार्बोवेज। दादी माँ पड़ी है, वो भी लास्ट स्टेज पे, तो कार्बोवेज काम करेगा ऐसा नहीं है। यू कैन आल्सो थिंक ऑफ digitalis जो साइनोसिस हमारा कम करेगा। अप टू द एक्सटेंट है। अभी आपने ये टॉपिक निकाला है तो बस ये लास्ट पॉइंट बोल देंगे, नेक्स्ट रेमेडी पे चले जाएंगे। मेरे पास एक केस था वेयर इनिशियली हार्ट रेट जस्ट रिकॉर्ड हुआ था, इंट्रायूट्राइन हार्ट रेट रिकॉर्ड हुए थे, वो हार्ट रेट ड्रॉप हो रहे थे। वो लोग गायनेक ने बोला कि इट इज कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग एंड वी माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी एंड ये जाएगा। एंड द पेरेंट्स वर वेरी एंशियस कि यार एक तो काफी लंबे के टाइम के बाद वो शी कुड कंसीव। एंड देन सिमिलरली जैसे आपने बोला, जस्ट गिव 3 doses ऑफ, आई सेड एक दिन रुक जाओ, आप डीएनसी मत करो, एक दिन रुक जाओ, आप इतना जल्दबाजी मत करो, आपको रुकना है एक ही दिन करो। आई जस्ट गिव 3 doses ऑफ डिजिटालिस 30 एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड शी सेड अभी स्टेबल हो गया।
and she carried, बच्चा आज 3 साल का है, she could deliver the child, but it is such deep acting remedy कि जहाँ पे आप इंट्रायूट्राइन हार्ट रेट को भी स्टिमुलेट करना है ना, तो बेझिझक डिजिटालिस को यूज करना। यस, वो हेल्प करेगा। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट रेमेडी भाई। अभी अपने को बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा ले चुके हैं, इसीलिए। अरे भगवान, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट रेमेडी इज एकिनीशिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन सुपर्ब रेमेडी है, एंड पूरे कोविड में हम लोगों ने इसके गार्गल्स यूज करवाए हैं। एकिनीशिया मदर टिंचर के गार्गल्स टू कीप योर फॉसेस क्लीन। बहुत क्रॉनिक मतलब अक्यूट फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉफ, कोल्ड कॉफ शुरू होने वाला होता है, एकिनीशिया के गार्गल्स इज जस्ट लाइक योर बेटाडिन गार्गल्स। बेटाडिन गार्गल्स के साथ जैसे आप पेशेंट को बोलते हो उसके टॉन्सिल्स, फॉसेस, सब ओरल फॉसेस क्लीन रखते हैं, एग्जैक्टली सेम वे अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज है, एकिनीशिया मदर टिंचर का गार्गल करवाइए, पेशेंट वुड बी हेल्प्ड इन अ वेरी बिग वे। We can say this is the augmenting of our homeopathy. Yes, internally they because any kind of a septic condition where you have get WBC more than 30,000, 25,000, you can think of this remedy. In one book, it also mentioned that if you have a septicemic injury, like डॉक्टर साहब मैं खेत में काम करता, मुझे कुराड लग गई और तब से मेरा जो एरिया है पूरा सेप्टिक हो गया और ठीक नहीं हो रहा है, as you said that gargles करवाओ, so locally also we can use this remedy on that injurious part, So Dr. Boger साहब ने बोला this is one of the good remedy for blood dysplasia. So no doubt it's the good remedy. But another important point is this is also important remedy given to reduce the pain in cancer. अभी हर कैंसर का पेन ठीक नहीं करेगा ये रेमेडी। जिस कैंसर केसेस में आपको सेप्टिसेमिक कंडीशन, like if you have a cancer of stomach or if you have cancer of liver or if you have cancer of kidney, where cancer of tonsillar carcinoma है, oral buccal mucosa है, हाँ, और जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत बैड कंडीशन है, आपको लग रहा है कि अभी सेप्टिसेमिक कंडीशन, दैट टाइम वी कैन गिव दिस रेमेडी। अदरवाइज बहुत सीवियर पेन है तो हम मॉर्फिनम यूज कर सकते हैं या ओपीएम यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूस द पेन, बट इट्स गिवन ही ना ये रेमेडी है कि इससे देना है। नाउ अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक मेरा केस बताता हूँ अभिषेक भाई, इन शॉर्ट बताता हूँ, मेरा टाइम कम है। हमारे एरिया में ना मराठी में उसको बोलते हैं सुटर। सुटर मतलब वो कुछ तो भी रहता है, हम कुछ क्रॉस कर लेते हैं और हमारे पैर पे बहुत सारे कार्बनकल्स या फिर बहुत सारे बॉइल्स आते हैं, एंड द बॉइल्स टर्न अप इनटू द ब्लैकिश कंडीशन और उसमें से ग्रीनिश पस फॉर्मेशन निकलता है, उसको बहुत ऑफेंसिव स्मेल रहता है। आई ट्राइड ऑल काइंड ऑफ रेमेडीज टू बी फ्रैंकली, बट दिस इज द ओनली रेमेडी व्हिच गिव्स मी वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट गुड रिजल्ट्स इन दैट कंडीशंस। तो जहां पे आपको ब्लड बॉइल्स है, जहां पे आपको सीवियर बॉइल जान सकते हैं कि सुटर यानी क्या, इसका और एरिया या नहीं समझ सकते हैं कि सुटर यानी क्या। तो वो सुटर है मल्टीपल बॉइल्स है आपको पैर के ऊपर, एंड अलॉन्ग विद सम चेंजेस इन द ब्लड, देन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। बोलिए। नहीं बस भाई यही था, इसके बारे में तो इतना ही है। नेक्स्ट लेट्स गो टू फारिंगटन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है दिस रेमेडी के बारे में। ये रेमेडी क्या करता है ना, आपका ब्लड स्ट्रीम क्लियर करता है। अगर आपके ब्लड में सेप्टिसेमिक कंडीशन उसको क्लियर करेगा, बट नेवर गिव दिस रेमेडी इनटू द अपेंडिसाइटिस। अगर आपको पता है कि इसको अपेंडिक्स है और आपको ये दवा दे रही है, जो अपेंडिक्स महीने भर में फूटेगा वो 2-3-4 दिन के अंदर फूट जाए, वी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन, सो दैट्स अ नेवर गिव दिस रेमेडी इन आल्सो इन अपेंडिसाइटिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी। बोगर साहब ने भी बोला है और बाकी बोरी साहब ने बोला है कि दिस रेमेडी आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी टू प्रोथॉप्स, ये काम करेगा। तो अगर आपको सेप्टिसेमिया है, यस। नेक्स्ट रेमेडी इज भाई इलैप्स। बोलिए। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हम लोगों ने पूरा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए पूरा डिजिटालिस किया है। ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए हम लोग वंडरफुली इलैप्स यूज कर सकते हैं। अगेन सेप्टिसीमिया जो आपने बोला था, सेप्टिसीमिया में भी मतलब अगर ओफीडिया ग्रुप है तो सेप्टिसीमिया मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांगली कवर करेगा। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, अगर उससे रिलेटेड हार्ट फेलियर हो रहा है, उसके सारे सीक्वली के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आई थिंक ऑल द सिम्टम्स विल बी कवर्ड वेरी ब्यूटीफुली। I did one important point. मेरा ऐसा ही केस था, he had a typhoid and platelet
कम डाउन था, आईजीजी आईजीएम कुछ नॉर्मल था, उसका डेंगू था नहीं, बट along with टाइफाइड और टिपिकल उसका चिलीनेस था, बोलो ना कि इलैप्स में दिया, दैट केस वाज बेटर विथ दिस इलैप्स। तो मोस्टली टाइफाइड हिमोरेजिक टाइफाइड है, प्लेटेड डाउन हो रहा है, लेकिन डेंगू नहीं है, देन आल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। डेंगू में तो हम आगे तो दवा आएगा हमारा इक्वेटोरियम जो वगैरह है, बट आई डोंट नो व्हाई आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इलैप्स हम देते हैं फीवर ऑफ रेन या फीवर ऑफ अंडरस्टॉर्म, ये दवा में क्यों आया? मुझे बहुत बार कोशिश किया समझने की, मुझे समझा ये सिम्टम आया कहाँ से, तो शायद प्रोविंस के टाइम में आया, मे बी बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी होगा, मे बी बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। नेक्स्ट जस्ट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिस्चार्जेस हैं इलैप्स के सारे डार्क हैं, ब्लैक हैं, ब्लैकिश हैं, so this is about Elaps. Next remedy is Elaps is very much complemented to Crotalus horridus. Crotalus horridus. Discharges of black discharge will get black blood, black जो उन्होंने बोला कि ईयर में से भी black blood निकल रहा है, नाक में से भी निकल रहा है, blackish निकल रहा है, so it's also similar to Crotalus horridus. Yes. But Crotalus horridus is having a tendency to anticoagulant करके काम करता है, and this drug specially works only at localized level. Though it's having a hemorrhagic tendency, बट ये लोकलाइज लेवल पे काम करेगा, जनरल लेवल पे Crotalus horridus काम, सिस्टमिक लेवल पे करेगा, सिस्टमिक लेवल पे Crotalus काम करेगा। Holistic homeopathy is writing acidity better by cold milk. Totally agree. Thank you so much for adding that. Let's switch to the next remedy, which is a very small remedy. उसके बारे में ज़्यादा कुछ experience नहीं है, which is Epiphegus. Epiphegus को usually हम लोगों ने headaches, dull headaches, chronic headaches के लिए, जहाँ better by जहाँ पे थोड़ा बहुत dull headache है, you feel better by pressing your head, and such kind of headaches में Epiphegus हम लोगों ने मतलब personally भी use किया है, but it is definitely an intermittent and very well written in Boger that it is complementary to Echinacea and Iris versicolor. Iris versicolor is also very deep acting remedy for gastric headaches. Yes, go ahead. Yes. So I don't know about the small remedies, that's why. Yeah. Haji? Equisetum. Equisetum. I have also used in few cases where especially I felt that कि urine में thread निकल रहा है, urine में mucus निकल रहा है, and there is a typical pain before the urination. तो pain bladder में नहीं हो रहा, pain at the बोलेगा कि मेरे को urethra में हो रहा है या फिर वो neck में हो रहा है. तो I use this remedy in few cases, especially जहाँ पे thread निकलता है, mucus निकल रहा है, चिकट urine भी कर रहा है, हम pus formation दिख रहा है इसमें और चिकट thread निकलता है, हम catheter निकालते तो कैसा वो पूरा दिखता है हमको liquid. That time I use also important for cystitis given by Boger sir. And just एक ही पॉइंट उसके बारे में कि जब एक क्रॉनिक केस में जब यूरिन इनकॉन्टिनेंस है जहाँ पे कॉस्टिकम काम नहीं कर रहा है, यू शुड ट्राई Equisetum. Yes. Okay, so next is Erigeron. Erigeron के बारे में क्लिनिकली बोला तो आई यूज दिस रेमेडी फॉर मेटोरेजिया, यूटेराइन हेमोरेज, ये मैं यूज करता हूँ along with like लिलियम हो गया या बाकी हेमोरेजिक रेमेडीज के साथ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर यूटरस. Also if you have मतलब second stage first stage of uterus prolapse and if you have quite bleeding there, no fresh bleed, that time you can use of Erigeron. What is the most important modality here we can get regarding to the metorrhagia or menorrhagia, especially on jerk or especially on changing of position. डॉक्टर साहब मैं उठ के बैठती हूँ तो ब्लीडिंग का गश निकल रहा है, फ्रेश ब्लड निकल रहा है, सिमिलर टू द लिलियम टी या फिर जो बाकी हमारे हाथ में रेमेडीज आती है, विनिका माइनर हो गया वगैरह, उसमें भी ये यूज करते हैं. अलॉन्ग विद दैट दिस रेमेडी आल्सो हेल्प्स इन जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसा लूकस आपने बोला है, बट आई यूज दिस रेमेडी स्पेशली ऑन ये क्या बोलते हैं यूटेराइन डिसऑर्डर्स के लिए. So I have just one case to share where there was again a very I guess 6 month pregnancy चल रहा था. Yes, our homeopathic pause remedy, totally agree. वैसे वही केस में बोल रहा हूँ, नाहिद सैयद जी के she was 6 months pregnant and she started complaining one day morning कि there is a tap like bleeding from PV bleeding हो रहा है. And they immediately rushed to hospital. I told them आप gynec hospital में मतलब आपका hospital में आ जाओ, we'll start. But before going to the hospital, we started giving her every Erigeron 30 every 5 minutes हम लोग देते रहे.
By the time the gynecologist came and she examined her PD examination, she said absolutely there is no bleeding, and the bleeding had stopped by the time they had come. So I totally agree. It is our homeopathic pause remedy. So anytime if you have such kind of bleeding, you can definitely think of Erigeron. Next is by Eucalyptus. नहीं पता मुझको उसके बारे में ज्यादा। Eucalyptus, I'm using it. I'm like यहाँ पे तो definitely बहुत detail में लिखा हुआ है about aching, stiff and weary pains, but उसको definitely इतना ज़्यादा confirm नहीं किया है. Bronchial asthma is very important. I'm using Eucalyptus mother tincture in such kind of a cough where there is more of discharge, more of wheezing, and usually I give it for olfaction. I'm not using it in internal form. I'm using it in olfaction, and definitely aromatic hydrochloride constitute के बारे में भी उसमें दिया है. Yes. But वो सब चीज इतना clinically confirm नहीं है. But ये चीज definitely बहुत repeated, maybe बच्चे का cough हो, old age patients का cough हो, but where there's cough with lot of bronchial, where you can see lot of wheezing, where there is also a lot of discharge, I give it for olfaction, and maybe you can add it to the boiling water and you ask them to take a steam of eucalyptus. So that's about eucalyptus. Euonymus. Use नहीं किया है कभी, but given that Euonymus is a very good remedy. I've used it in few cases of albuminuria where the EGFR of the patient is getting affected, where the EGFR patient का बहुत high है and patient को albuminuria बहुत significantly हो रहा है. You used it in 3x potencies and the results have been very good. So this is about remedy we can use in ICU, मतलब इसमें use कर सकते हैं albuminuria high रहेगा. Yes, definitely use कर सकते हैं ना. We can definitely use it. Lot of times you will get cases of CRF also where there is sudden shift in albuminuria, patient starts complaining of. So this what I have personally used is in 3x potency. So that is a very good indication for that. Jitesh bhai, eucalyptus for hydronephrosis and pyelonephritis. Yes, Jitesh bhai, this reminds me of a case. Eucalyptus I had used, all thanks to Sarkar sir again. Eucalyptus I had used with in a case of ARF where the patient had past history of malaria and had given eucalyptus mother tincture. 30 use किया था, sorry. Eucalyptus 30 and patient's ARF got reversed. So a very good indication. Thank you, Jitesh bhai. Right time पे आके आपने एक अच्छा indication मेरे को याद दिला दिया. Thank you so much. Next is Eupetorium Perfoliatum. Yes, one of the good remedy, as everyone knows that this is a very good remedy for fever. हम बोलते हैं ना, fever में बहुत ज़्यादा pain हो रहा है, bone breaking fever दिया है, sore and bruise feeling all over the body. But wanted to add this कि जहाँ भी अभी आपको malaria है, malarial jaundice, if you are getting the malarial jaundice with platelet count down हो रहा है, प्लाज्मा चढ़ाने पर है, jaundice ठीक ही नहीं हो रहा after malaria, then think of this. Hepatic organ failure में we can think of this. Because डेंगू में देते हैं, no doubt डेंगू में it helps, but along with that हमको फीवर में मोडेलिटी और फीवर का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है. डॉक्टर साहब बदन पूरा फूट रहा है, बदन इतना फूट रहा है कि फीवर में कि आप सोचो मत, नो. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियडिसिटी उसमें दिया है कि मॉर्निंग 7 to 9 AM का उसमें जो दिया है चिल, ये इंपॉर्टेंट दिया है इसमें. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो बहुत रेयर केसेस में होता है, यू नो, इसको अगर क्या समझना, इसमें फिनोमेना फीवर, पेशेंट को फीवर आता है, देन ही फील thirsty, then cheeks thirsty, then he started vomiting and then followed by cheeks. तो vomiting में हमको पूछना है कि vomiting कैसा है. they definitely will tell डॉक्टर साहब बहुत कड़ू vomiting आ रहा है, क्योंकि this is a remedy which helps in also in a jaundice. low grade fever है, डॉक्टर साहब मेरे को 4-5 बार मलेरिया का हिस्ट्री है, jaundice हो गया, अभी मेरे को jaundice बैठ नहीं रहा है. हम ये रेमेडी को सिर्फ फीवर के बारे में जानते हैं, बट दिस इज आल्सो वेरी गुड रेमेडी व्हिच हेल्प्स इन hepatic enlargement या hepatomegaly along with the fever. This is also important point I wanted to add here. Also BS effects है इसमें. Yes, also all the symptoms are very close to dengue because it corresponds to the retroorbital pain also. Retroorbital pain जो है dengue का, which is a very characteristic symptom which is exactly covered in Eupetorium Perfoliatum. And again that because वो family का ही पूरा
दिया हुआ है कि shoreline bluish feeling है. So that's how Many of Eupatorium time I use Perfoliatum is. this remedy along with the papaya also in dengue. पता है मैं रेमेडी दे रहा हूँ, फीवर सबसाइड हो रहा है, लेकिन मेरा प्लेटलेट बढ़ नहीं रहा है भाई. Then I can also, मैं पपाया बहुत बार दिया, प्लाज्मा चढ़ा रहा है लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है. बढ़िया फीवर ओके है, लेकिन ये ओके है, उल्टियां रुक गई है, सब ओके, लेकिन ये आंसर गिवन विद पपाया, तो तब वहां पे कुछ बहुत सेटल हो. बट एक इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ना, क्लिनिकली मलेरिया हुआ है डॉक्टर साहब बहुत बार, अभी जॉन्डिस भी हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है. थिंक ऑफ दिस रेमेडी बिकॉज इट्स हैविंग अ बिलियस इफेक्ट हिपेटोमेगाली, या फिर इसके ऊपर रेमेडी काम कर. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ. मेरा केस था इन शॉर्ट, इज अल्कोहलिक था पेशेंट, है ना, मतलब बहुत रेमेडीज दिया लेकिन उससे भी ये केस खुल गया था. जस्ट ओनली ऑन वन पॉइंट, वो ना अल्कोहल लेके आता था, हरी पीली उल्टियां करता था. ही स्टार्टेड विद चिल्स. फिर मेरे को डॉक्टर साहब इतना ठंड लगता कि पूछो मत, है ना. आई वाज जस्ट थिंकिंग कैसा कौन सा रेमेडी है जिसमें इसको वोमिटिंग के बाद में चिल्स मिलेगा, साथ में सीरोसिस भी मिलेगा. पेशेंट अल्कोहलिक, we can think of sulfuric acid, we can think of mercuric acid, we can think of other remedies which is important for alcoholism. But after giving this remedy, he improves like anything. Yes. So this is मतलब followed by chills, vomiting, वो cycle ही है, fever plus thirst plus vomiting and chills. ये उसका पूरा क्या बोलते हैं डायरेक्शन. Yes. So this helps. हमारे एक सीनियर आए डॉक्टर ललित पाटिल सर. हेलो ललित सर, हाउ आर यू? आई रिमेम्बर यू वेरी वेल. आपको रिमेम्बर लिखने की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट इज भाई यूपेटोरियम पुरपुरियम. उसको भी ज्यादा नहीं यूज हुआ है, बट आई डेफिनेटली हैव सीन बीइंग यूज्ड इन क्रॉनिक केसेस ऑफ यूटीआई. आप एक ओल्ड एज पेशेंट्स क्रॉनिक यूटीआई लेकर आते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी वेयर इट कैन बी यूज्ड इन especially also chronic UTIs where there is split stream urine. Split stream urine you may get in chronic UTIs in males, females, both the kind of patients, and sometimes also in urethral strictures. So these are the indications for Eupatorium Purpureum. Yeah. Next is Euphorbium. भाई Euphorbium मैंने तो सिर्फ कैंसर के जो excessive pains होते हैं, जहाँ पे furuncles form हो जाते हैं, जहाँ पे boils form हो जाते हैं. But what I've used is, unlike everything else, this I've been used only in high potencies, has worked well in almost 10 and above. So Euphorbium के बारे में उतना ही पता है, जहाँ पे internal burning है, bones तक burning जा रहा है, burning बहुत severe है. Also where there is exact formation of furuncles at the skin level. Next is now Euphrasia. लास्ट रेमेडी है भाई यूफ्रेसिया. इसके एंड में मैं सिर्फ एक ही केस सरकार का बोलूंगा जो मैंने देखा था. इतने सालों में जितना इसने धमाल नहीं मचा यूफ्रेसिया में, उतना धमाल इसने इस सीजन में मचाया. वी कैन से यस अभी चालू है ना सीजन चालू है. I wanted to add about the Euphrasia. This Euphrasia is remedy also important for secretory condition of mucous membrane, just not only of the eye but also respiratory system. Yes. अभी Euphrasia हमको पता है कि बस एक्रिड कोराइजा है, वाटरी है, you can think that स्विमिंग पूल है आंखों के अंदर वगैरह वगैरह, एक्रिड डिस्चार्ज वगैरह. एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, क्योंकि Euphrasia का इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिक्स रेमेडी वेयर यू कैन यूज इन ऑल काइंड्स ऑफ कंजंक्टिवल पेन हो गया या कैटरेक्ट हो गया वगैरह वगैरह यूज कर सकते हो. वांटेड टू ऐड ओनली वन पॉइंट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ना. cough with the mucus ended with the vomiting, then also think of Euphrasia. Now how to differentiate this with Drosera? यहाँ पे Drosera से हम कैसे डिफरेंशिएट करें Euphrasia? तो Drosera always comes with the gag. वो गैगिंग करेगा निकालने के लिए चीज. तो यहाँ पे वो हॉक करे, हॉकिंग, and then started vomiting mucus निकालने के लिए, and that mucus becomes sticky. So that time we can also of acrid discharge, but also there is a profuse discharge in the beginning, and then mucus becomes in the beginning profuse and then becomes acrid. And to remove that mucus, he always and then he vomited out that mucus. This is the difference where you can understand the Drosera and Euphrasia. Other than that, everybody knows about Euphrasia. Nowadays, everybody uses this Euphrasia in conjunctival flu and all that because of sticky acrid discharge from the eyes and all these things. One important point given into the Euphrasia, this is also important remedy for the boils around one called eyelids, corneal
इसके लिए. Then one important point given after the dryness of the discharge, there is a varnish coloration. You can get it around the eyes. तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया कि इसका डिस्चार्ज तो है, बट वहां पे कुछ जाने पर ना एकदम सिल्वर काइंड ऑफ थिक आपको दिखेगा कि अरे यहाँ पे लगा हुआ. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एक्यूरेसी. नाउ एवरीबॉडी हैव यूज्ड दिस रेमेडी इन कंजंक्टिवाइटिस वगैरह वगैरह, तो बताने का कुछ काम तो है ही नहीं, but still wanted to add into my practice. I have treated much cases with Epiphegus in conjunctivitis, so I'm differentiating कि ये डिस्चार्ज कैसा है, क्या नहीं हो रहा है. Then I can also give very good indication, results in conjunctivitis. Just इतना ही मैं important point about Euphrasia बताना पाऊँ. डेफिनेटली आई एग्री. जो भी आपने बोला वो यही था. कुछ ऑफ बीट मैं सिर्फ एक चीज बोल देता हूँ एंड देन वील साइन ऑफ फॉर टुडे. सरकार सर की क्लिनिक पे गए थे हम लोग सीखने के लिए. हम लोग कोशिश करते हैं कि जाते रहते हैं. एक इनफर्टिलिटी का केस आया था एंड सर ने पूरा हिस्ट्री लिया. नहीं, इट वाज नॉट अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी, इट वाज अ केस ऑफ ब्लाइंडनेस. पेशेंट को ब्लाइंडनेस था एंड पेशेंट को ब्लाइंडनेस के साथ सर ने रेमेडीज दिए. पूरा केस एग्जामिन किया. पेशेंट ने बोला कि पास्ट में उसको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स था. इसलिए सर ने हम लोग को ये लाइन पढ़वाया था कि एमेनोरिया विद कटारल सिम्टम्स ऑफ आईज एंड नोज. इसलिए यूफ्रेशिया 50 ml 1 डोज. एंड बाद में तो ऑब्वियसली सर ने जो भी दिया हो, बट दिस वी नेवर रेड यूफ्रेशिया एलेंस्किनोट दिस वे, द वे ही रेड इट. सो ये बड़े टीचर्स ये जो हमारे सीनियर्स, ये जो अभी लिविंग लेजेंड्स हैं, इनकी ये स्पेशलिटी है कि वो कुछ ऐसा दिखा देंगे जो कभी नहीं आपने देखा रहेगा और आपने कभी यूज भी नहीं किया होगा. डेफिनेटली बाद में हम लोग जो उनके असिस्टेंट है उनसे बोला था, फॉलोअप्स लिए थे एंड दैट पेशेंट रियली इम्प्रूव विथ हर विजन. सो ऐसे कुछ ग्रेट टीचर्स को हम लोगों ने देखा है, हम देख रहे हैं, हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं. So thank you so much everyone for joining. Thank you so much everybody for staying. आज कम रेमेडीज थे, हम लोग ने सोचा जल्दी हो जाएगा, बट एक अच्छा डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन के एंड में, मतलब इट केम आउट टू बी अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. थैंक यू सो मच प्रवीण भाई फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंस. जो आपने बोला, जो आपने वर्ड्स बोले हैं, आई थिंक जो भी ये आज का सेशन पूरा अटेंड कर रहा है या फिर आगे जाके देखने वाला है, आपने बहुत प्रिसाइसली चीजों को पॉइंट आउट किया है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग. नहीं, थैंक यू मत बोलो अभिषेक भाई. एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि कुछ मैं शेयर करूं. तो आई जस्ट शेयर फ्रॉम माय क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट. हाउ आई कोरिलेट, हाउ आई डिफरेंशिएट द रेमेडीज क्लिनिकल इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस. नहीं, आई होप दिस हेल्प. इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि आपको एक बार मैं इनवाइट कर सकूं और आप आ जाओ, क्योंकि ये जो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप जैसा देते हो वो कोई और नहीं दे सकता. Thank you so much once again and we'll sign off for now. Thank you so much for joining everybody. Please everybody should please share करना, please सबको comment section में हमको बताना कि कैसा था. Thank you so much. See you next week. Bye bye. Bye bye. Thank you.